Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. It's my pleasure to welcome Mr. Zishan Rahat Qureshi in this session with the students of the Federal Urdu University. Mr. Zishan Rahat Qureshi, he is the CEO of the High Achievers League. He has a 22 years of experience with in the industry and the academia. He is with the United States Education Foundation Pakistan for 7 years, and he is MBA and MS from the United States. He is MS in Information System. So, Mr. Zishan Rahat Qureshi, welcome, sir. Thank you. So, you are with the students of the Department of Business Administration, Federal Urdu University, Islamabad. So, thank you. So, we have the few questions today that we want to ask you about the GRE and the Fulbright scholarships, and who can apply for this, and what is the benefit of GRE, and what kind of the preparation is required, and how much time is required. So students will be asking the question at the end of the session. Meanwhile, if you're generally the time that we have specified for this session is about 45 minutes. But in case if we want to extend this session, so we can have the break of 5 minutes and then we can continue it. Okay, sir. So mic is over to you, sir. Thank you very much, sir. Please. जी मुझे साहब होस्ट बना दीजिएगा so that I can share my screen. Okay, sir. All right. So let's start by giving an introduction to the Fulbright program, and welcome everyone, and thank you so much, Musa Saab, for having me here. So ये जो Fulbright program है, this started in 1950 in Pakistan, and the goal, as you can see on the screen, was to promote educational and cultural exchange. So when we say we promote education and cultural exchange, this means के इसका जो goal है वो सिर्फ education spread करना नहीं है, बल्कि जब when people from Pakistan they go to the US, they learn some positive things about the American culture. और इसी तरह से जो American students हैं, professors हैं, they also learn positive things about our culture. तो ये इसका main goal था. अब इसके अलावा let's talk about the eligibility criteria without wasting any time. So who can apply for Fulbright? So if you have 16 years of education, you can apply for the master's program in Fulbright. If you have 18 years of education, you can apply for PhD. कौन apply कर सकता है? You need to be a Pakistani citizen and residing in Pakistan to be able to apply for Fulbright. अच्छा, अब इसके बाद ये है कि it supports fully funded masters and PhD. This means कि जो आपकी फंडिंग है ये फुलब्राइट करता है अगर आप फुलब्राइट के लिए सिलेक्ट हो जाएं, और ये तमाम एकेडमिक डिसिप्लिन्स में आप अप्लाई कर सकते हैं एक्सेप्ट क्लिनिकल मेडिसिन. तो इफ यू हैव एनीथिंग विद पेशेंट्स, विद लाइव पेशेंट्स, आइदर एनिमल्स और ह्यूमंस, देन यू कैन नॉट अप्लाई फॉर फुलब्राइट. लेकिन उसके अलावा दुनिया की कोई भी फील्ड है, फ्रॉम म्यूजिक टू इंजीनियरिंग टू बिजनेस, देन यू कैन अप्लाई फॉर द फुलब्राइट प्रोग्राम. कोई कोटाज नहीं है, लेकिन डाइवर्सिटी को किया जाता है, which means के those people who live in remote regions, they are encouraged to apply, women are encouraged to apply, minorities are encouraged to apply, and differently abled people, people with disabilities, they are encouraged to apply. अच्छा, ineligibility का थोड़ा सा देख लेते हैं, कौन लोग ineligible हैं जो अप्लाई नहीं कर सकते. अगर आपके पास ड्यूअल यूएस पाकिस्तानी नेशनैलिटी है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते. Those who have a parent, spouse, fiance or child over 18 years who is a US citizen or permanent US resident, they can't apply. जो आपके US गवर्नमेंट के पाकिस्तान में एम्प्लॉयज हैं, फुलब्राइट ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज हैं, US स्टेट डिपार्टमेंट या US स्टेट के एम्प्लॉयज हैं, वो इनएलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए. अगर आपने एक बार मास्टर्स अवेल कर लिया है तो आप दोबारा फुलब्राइट में PhD के लिए अप्लाई नहीं कर सकते. अगर आपकी इमिग्रेशन पेंडिंग है यूएस में तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, और वो लोग जो ऑलरेडी यूएस में पढ़ रहे हैं या काम कर रहे हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते. अच्छा, इसकी टाइमलाइन क्या है? तो फरवरी में फुलब्राइट एप्लीकेशन अनाउंस होती है, उसके बाद
in May the applications close. So the deadline अभी हमारी 11th May को deadline थी, तो May में close हो जाती है. उसके अलावा ओके सो एप्लीकेशन रिव्यू होती है समर में, इंटरव्यूज होते हैं सितंबर में, और रिजल्ट्स जो हैं वो अनाउंस होते हैं अक्टूबर नवंबर में जाके. ओके और क्लासेस कब शुरू होती है? नेक्स्ट ईयर फॉल में. तो अब आप में से जो लोग 2023 फेब में अप्लाई करेंगे कि क्लासेस शुरू होंगी 2024 में. तो 1 साल का ये प्रोसेस है अप्लाई करने का. ओके सो एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? तो सबसे पहले तो जीआरई का स्कोर रिक्वायरमेंट है. यू नीड टू टेक द जीआरई स्कोर. उसके अलावा इसके अंदर 2 एसेज होते हैं जो आपको एप्लीकेशन के अंदर लिखने होते हैं. एक होता है पर्सनल स्टेटमेंट विच इज अबाउट योरसेल्फ, इसमें वो आपकी पर्सनैलिटी को जज करते हैं. और दूसरा होता है स्टडी रिसर्च ऑब्जेक्टिव. तो स्टडी रिसर्च ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि इसके अंदर आप अपने एकेडमिक गोल्स बताते हैं उनको कि आपके एकेडमिक गोल्स क्या होंगे, और आपने जो फील्ड सेलेक्ट की है वो की है उसमें आप क्या करना चाहते हैं. तो ये इसके अंदर होता है. अच्छा उसके अलावा 3 रेफरेंस लेटर्स चाहिए होते हैं. ये रेफरेंस लेटर्स आप अपने टीचर से लेते हैं. अगर आपने कहीं काम किया है तो 2 रेफरेंस लेटर्स यू कैन गेट फ्रॉम योर टीचर्स एंड 1 फ्रॉम योर supervisor wherever you, if you haven't worked anywhere, then these 3 reference letters can come from your teachers. अच्छा उसके अलावा फिर वो ट्रांसक्रिप्ट देखते हैं. तो ट्रांसक्रिप्ट के अंदर बेसिकली आपने जो भी आपने अपनी फाइनल डिग्री की है उसका ट्रांसक्रिप्ट आपको जमा कराना होगा. ये वो कुछ चीज़ें हैं जिसकी बेस पे फुलब्राइट एप्लीकेशन डिसाइड होती है. अच्छा अब जब हम कहते हैं कि आप अगर सिलेक्ट हो गए फुलब्राइट के लिए, इट वुड बी अ फुली फंडेड स्कॉलरशिप, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपको ट्यूशन पे नहीं करनी, वो फुलब्राइट करेगा. आपको जो बुक्स रिक्वायर्ड बुक्स हैं वो फुलब्राइट देगा. आपकी एयरफेयर टिकट एक बार जाने का एक बार आने का वो फुलब्राइट देगा. आपको एकोमोडेशन दी जाएगी. आप वीज़ा असिस्टेंस दिया जाएगा. वीज़ा देती एम्बेसी है, लेकिन वीज़ा के जो लॉजिस्टिक्स हैं वीज़ा अप्लाई करने के उसमें फुलब्राइट हेल्प करता है. आपको हेल्थ इंश्योरेंस दी जाएगी और आपको मंथली स्टाइपेंड भी दिया जाएगा, जिसका मतलब है कि आपको अपने महीने के खर्चे की फिक्र नहीं करनी होगी इफ़ यू गेट सिलेक्टेड फॉर फुलब्राइट. तो ये सब चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड है. अच्छा ग्रांटी ऑब्लिगेशंस क्या हैं? अगर आपको फुलब्राइट मिल जाता है तो आपका जो है आपको जितने साल की आपकी डिग्री है उतने अरसे के लिए आपको वापस आना होगा, पाकिस्तान वापस आना होगा. ये एक ग्रांटी ऑब्लिगेशन है जो आपसे रिक्वायर्ड है. तो आपके क्या क्या चीज़ें देखी जाएंगी आपको करने के लिए? आपके ग्रेड्स देखे जाएंगे, आपकी कितने क्लियर आपने स्टडी ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं वो देखे जाएंगे, आपका जीआरई का स्कोर देखा जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपकी कितनी स्ट्रांग है ये देखा जाएगा, और आपकी कमिटमेंट टू कम बैक टू पाकिस्तान. और पाकिस्तान आपने कितने अरसे के लिए आना है? जितने अरसे के लिए आप वहाँ पे आपकी डिग्री हुई है उतने अरसे के लिए आपको वापस आना है. उसके बाद यू आर फ्री टू गो वेयरएवर यू. जो आपके रिकमेंडेशन लेटर्स हैं वो स्ट्रांग होने चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस स्ट्रांग होनी चाहिए, स्टडी ऑब्जेक्टिव स्ट्रांग होनी चाहिए. ओके अब थोड़ा सा हम जीआरई पे बात कर लेते हैं, क्योंकि जीआरई जो है वो आपको इसके लिए रिक्वायर्ड होता है. लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूं कि फुलब्राइट तो एक तरीका है जिससे आप अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन जैसे भी हमने डिस्कस किया कि अब फुलब्राइट फरवरी में अगले साल खुलेगा और आप जाएंगे उससे अगले साल, तो क्यों ना आप इन द मीनवाइल इस साल डायरेक्ट एडमिशन्स के लिए अप्लाई करते हैं. डायरेक्ट एडमिशन्स के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं? अब दिसंबर में यूएस मास्टर्स और पीएचडी की डेडलाइंस आएंगी, तो दिसंबर से पहले यानी इस वक्त आपको अपना प्रोसेस शुरू कर देना चाहिए. और उसके अंदर हम लोग असिस्ट करते हैं स्टूडेंट्स को. कैसे असिस्ट करते हैं? सबसे पहले तो स्टूडेंट की प्रोफाइल की बेस के ऊपर हम यूनिवर्सिटीज़ शॉर्टलिस्ट करते हैं. वो यूनिवर्सिटीज़ जिसमें हम समझते हैं कि स्टूडेंट का एडमिशन हो सकता है और जिनके पास फंडिंग देने के लिए, स्कॉलरशिप देने के लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फंड्स हैं. तो सबसे पहले यूनिवर्सिटीज़ शॉर्टलिस्ट की जाती हैं. उसके बाद हम आप एप्लीकेशन फिल करना शुरू करते हैं, उसमें हम गाइडेंस देते हैं. उसके बाद तीसरी चीज़ ये होती है कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं.
डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स क्या है यूनिवर्सिटीज की जहाँ आप अप्लाई करें, जो शॉर्टलिस्ट की हैं, और वो टेस्ट कौन सा मांगे। सो जनरली लैंग्वेज टेस्ट आपको देना होता है, वो कई यूनिवर्सिटीज आइल्स मान लेती हैं, कई यूनिवर्सिटीज डुओलिंगो भी एक्सेप्ट कर लेती हैं। तो वो हम देख लेते हैं जब यूनिवर्सिटीज शॉर्टलिस्ट हो जाती हैं कि कौन सा टेस्ट देना है। और अगर आपको अपनी फील्ड में अगर तो GRE स्किप हो सकता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो सकता तो फिर आपको GRE भी देना होगा। ये चीजें होगी। उसके अलावा जो आपको कुछ एसेस लिखने होते हैं हर शॉर्टलिस्टेड एप्लीकेशन में, जिसको कहते हैं SOP या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो हम स्टूडेंट्स को ये कहते हैं, जो स्टूडेंट हमारे साथ काम करते हैं, कि वो पहला ड्राफ्ट SOP का खुद लिखें, बिकॉज द स्टूडेंट नोज द बेस्ट अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। लेकिन फिर उसके बाद हम आपके SOP को रिव्यू करते हैं, एडिट करते हैं, और अगर जरूरत पड़े तो रीराइट करते हैं। अच्छा, उसके बाद जो रिकमेंडेशन लेटर्स होते हैं वो आजकल टीचर्स डायरेक्टली लिंक्स के थ्रू फिल करते हैं। तो अगर आपकी अच्छी हेलो है टीचर के साथ और वो आपको रिकमेंडेशन लेटर दिखा देते हैं कि वो क्या लिख रहे हैं, तो हम उसको भी रिव्यू कर लेते हैं, अगर एडिट करने की जरूरत है एडिट कर लेते हैं, और फिर फाइनली हम अप्लाई करवा देते हैं थ्रू द यूनिवर्सिटीज वेबसाइट। इसकी ऑब्वियसली ये सारी जो सर्विसेज मैंने आपको बताई हैं, इसकी एक फीस है, इसमें एंड में वीज़ा कंसल्टेंसी भी होती है। तो आप में से जो भी इंटरेस्टेड हो, इस वीडियो के बाद एक डिस्क्रिप्शन में लिंक आ जाएगा कुछ देर के बाद, उस लिंक को आप प्रेस कीजिएगा और रजिस्टर कर लीजिएगा एज अ स्टूडेंट, ताकि हमें पता चल जाए कि कौन कौन इंटरेस्टेड है, और फिर हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे और आपको फर्दर डिटेल्स बता देंगे। अच्छा, तो एक तो तरीका हो गया फुलब्राइट स्कॉलरशिप, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एक तरीका हो गया डायरेक्ट एडमिशन्स के, आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज को शॉर्टलिस्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी चीज अब हम बात करते हैं GRE। जो GRE है इसकी ये बेसिकली 4 घंटे का टेस्ट है, जिसको आपको कंप्यूटर के सामने बैठ के देना होता है। इसकी जो फीस है दैट इज $205। ये ETS एक ऑर्गेनाइजेशन है, एजुकेशन टेस्टिंग सर्विस। ये ऑर्गेनाइजेशन ये लेती है फीस। टेस्ट स्कोर कितने अर्से के लिए वैलिड है? 5 साल के लिए वैलिड है, और आप 5 बार साल में GRE दे सकते हैं। अच्छा, इसमें सेक्शंस कितने? क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, मैथ का पोर्शन। तो मैथ के पोर्शन के इसमें 2 सेक्शंस हैं और 40 क्वेश्चंस हैं। वर्बल रीजनिंग है, इंग्लिश का पोर्शन, इसके इसमें 2 सेक्शंस हैं, अगेन 40 क्वेश्चंस हैं। एंड एनालिटिकल राइटिंग जो है, दिस इज दी एसे राइटिंग पोर्शन। तो आपको टाइप करने होते हैं 2 एसेस, और हर एसे के लिए आपको आधा घंटा मिलता है। इसकी डिटेल में हम देख लेते हैं जो फॉर्मेट है। तो सबसे पहले जब आप ये शुरू करेंगे तो एनालिटिकल राइटिंग आएगा, जिसमें कि आपको 2 एसेस टाइप करने होते हैं, और हर एसे के लिए आपके पास 30 मिनट्स होते हैं। इसके बाद वर्बल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव रीजनिंग के आपके पास अल्टरनेटली आते जाएंगे सेक्शंस। वर्बल जैसे कि मैंने बताया इंग्लिश है, क्वांटिटेटिव मैथ है। 2 सेक्शन आते हैं वर्बल के, 2 आते हैं क्वांटिटेटिव। तो वर्बल में आपके पास कितना टाइम होता है? 30 मिनट्स होते हैं हर वर्बल सेक्शन के लिए, और 20 क्वेश्चंस होते हैं। इसका मतलब है कि आपके पास यू हैव अराउंड 1 मिनट एंड अ फ्यू सेकेंड्स टू ईच क्वेश्चन। इसी तरह से जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, जो आपका मैथ का पोर्शन है, उसमें आपके पास 35 मिनट्स होते हैं और 20 क्वेश्चंस होते हैं हर क्वेश्चन। तो हर क्वेश्चन के लिए अगेन यू हैव 1 मिनट एंड अ फ्यू सेकेंड्स। तो कितने ये हो गए? 2 वर्बल, 2 क्वांटिटेटिव, 4 सेक्शंस हो गए। कभी कभी ETS क्या करता है, ये एक एक्स्ट्रा सेक्शन भी दे देता है, तो वो क्वांट भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है। तो अगर आपके पास 5 सेक्शन आ जाए तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। अगर 5 सेक्शन हो तो एक सेक्शन स्कोर नहीं होता, लेकिन हमें नहीं पता होता एज अ टेस्ट टेकर कि कौन सा सेक्शन स्कोर नहीं होगा। तो आपने चाहे 4 सेक्शन हो चाहे 5 सेक्शन हो, हर सेक्शन को इसी तरह करना है जैसे कि वो स्कोर होगा। डोंट वरी अबाउट दैट, जितने भी सेक्शंस आए आपको कर लीजिए। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसमें ये बता दूंगा कि क्वांट की स्कोरिंग कैसे होती है। तो टोटल जो GRE का स्कोर होता है ना, वो होता है 340। और 340 कैसे बनता है? 170 होता है इंग्लिश का, और 170 होता है मैथ का। तो 170 प्लस 170 गिव्स अस 340। तो मैथ के सेक्शन में द मिनिमम दैट यू कैन गेट इज 130, द मैक्सिमम दैट यू कैन गेट इज 170। और इंग्लिश के सेक्शन में भी इसी तरह ही है, द मिनिमम यू कैन गेट इज 130 एंड द मैक्सिमम दैट यू कैन गेट इज 170। 130 को 0 कंसिडर कर, अगर आपका 130 स्कोर है इसका मतलब आपने किसी भी सवाल का सही जवाब नहीं दिया। मैथ में किस किस्म के क्वेश्चंस आते हैं? यू आर टेस्टेड ऑन द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड डाटा एनालिसिस। और ये 4 तरह के क्वेश्चंस आते हैं।
इसमें एक होता है क्वांटिटेटिव कंपैरिजन, जिसमें आपको दो क्वांटिटीज गिवन होंगी और आपको कंपेयर करना है। एक होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें देयर इज वन करेक्ट आंसर। देयर इज अनदर वन कॉल्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इन विच देयर कैन बी मोर देन वन करेक्ट आंसर। और एक होता है न्यूमेरिक एंट्री। ये जो न्यूमेरिक एंट्री है, इसके अंदर आपको मल्टीपल चॉइस आंसर्स नहीं दिए होते, बल्कि इसके अंदर बॉक्स एक दिया होता है एंड यू हैव टू टाइप द करेक्ट आंसर इनसाइड द। तो ये तो सारे का सारा हो गया क्वांट का, कि किस किस्म के क्वेश्चंस आते हैं, क्या स्कोरिंग है। और ये लिखा है कि यू गेट द स्कोरिंग इन इंक्रीमेंट्स ऑफ 1 पॉइंट। सो दिस मींस कि आपको पॉइंट्स में नहीं स्कोर मिलता। So either you can get a 130 or a 131 or a 140 or a 150. You won't be getting a 150 point or a 141. इस तरह से आपको स्कोर नहीं मिलेगा। क्वांट के अलावा मैं ब्रीफली आपको, अभी सैंपल का हमारे पास टाइम नहीं है, तो मैं आपको वर्बल की भी स्कोरिंग बता दूं। वर्बल की स्कोरिंग भी हमारी होती है बिटवीन 130 to 170। और ये 3 तरह के क्वेश्चंस हैं जो कि आपके पास आते हैं वर्बल में। एक है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है, आपको पैसेजेस दिए गए होंगे एंड यू हैव राइट, जस्ट गिव मी आई थिंक सम स्टूडेंट्स इन थिंग। ओके, सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको पैसेज दिया होगा एंड यू हैव टू आंसर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट पैसेज। उसके बाद टेक्स्ट कंप्लीशन और सेंटेंस इक्विवेलेंस, ये दो वो सेक्शंस हैं जिसके लिए आपको वोकैबुलरी बिल्ड करनी पड़ेगी। और वोकैबुलरी जो बिल्ड होती है वो एक दिन में बिल्ड नहीं होती, रिमेंबर दैट। अगर आप रोज 10-15 वर्ड्स करें, याद करें उनके मीनिंग्स, तो आपको 1.5 महीना 2 महीना लग जाएगा वोकैबुलरी बिल्ड। टेक्स्ट कंप्लीशन और सेंटेंस इक्विवेलेंस में क्या होता है, फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए होते हैं और आपको करेक्ट वर्ड चॉइस आपको सेलेक्ट करनी होती है फॉर ईच ब्लैंक। तो ये 3 तरह के क्वेश्चंस हैं जो इसमें आते हैं। इंग्लिश में अच्छा करने के लिए आपकी रीडिंग स्पीड होनी चाहिए और आपको अपने वर्ड्स वोकैबुलरी बिल्ड करनी। मैथ के लिए यू हैव टू प्रैक्टिस बेसिक ज्योमेट्री, बेसिक अलजेब्रा, बेसिक अरिथमेटिक। ये उस लेवल की मैथ है जो कि आप ऑलरेडी कर चुके हैं, आइदर इन लेवल, ए लेवल या इन मैट्रिक इंटर। उसमें डेरिवेशन नहीं होती, इंटीग्रेशन नहीं होती, दिस इज द गुड न्यूज़, बट बेसिक मैथ होती है। अच्छा, उसके बाद जो आपका फाइनल सेक्शन है एनालिटिकल राइटिंग का, जिसमें आपको एसेस लिखने होते हैं। उसमें 2 तरह के एसेस होते हैं। एक ऐसे होता है जिसमें आपको एक स्टेटमेंट दी गई होती है और आपको अपना ओपिनियन बताना होता है उसके लिए। और जो दूसरे वाला ऐसे होता है, उसमें भी स्टेटमेंट दी गई होती है लेकिन आपको ओपिनियन नहीं बताना होता, आपको उसके जो कंक्लूजन है उसको क्रिटिक करना होता है, विच मीन्स कि आपको बताना होता है कि कंक्लूजन में झोल क्या है। तो ये 2 तरह के एसेस हैं जो आपको करने होते हैं। सो वी हैव स्पेंड अराउंड 25 मिनट्स। तो ये बेसिक्स थी जो मैं कवर करना चाह रहा था। आई थिंक कैन गिव सम टाइम to students for question answers. So, Mr. Saab, I'll be making just again. So Okay, let's see if thank you students very have much, sir. questions. Thank you very much for such a precise information about GRE and the Fulbright. We have few questions. First of all, I want to know that about your organization, that what kind of, like you provide the training in the GRE, you also provide the consultancy to the students who want to, who feel themselves weak in applying for the scholarships. And third is that about the IELTS. So if you can brief us about these things. जी, thank you for the question. So basically हम लोग हाई अचीवर्स लीग में जो सर्विसेज देते हैं, उसमें एक तो जो मैंने आपको पहले बताई, जो एडमिशन कंसल्टेंसी है वो हम करते हैं, जिसके अंदर हम स्टूडेंट की प्रोफाइल की बेस पे उनके लिए यूनिवर्सिटीज को शॉर्टलिस्ट करते हैं। हम देखें देयर आर मोर देन 4700 accredited institutions in the US। यहाँ पे जनरली स्टूडेंट्स ने 10 के, 12 के, 15 के, हार्वर्ड, प्रिंसटन, येल इस तरह के नाम सुने हुए होते हैं और वो गलती ये करते हैं कि इनमें अप्लाई करना शुरू कर। ऐसा नहीं होना चाहिए। होना चाहिए कि हमारे पास सॉफ्टवेयर टूल्स मौजूद हैं, दूसरी इंफॉर्मेशन मौजूद है कि हिस्टोरिकली कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप वगैरह देती आई हैं, और उसके अलावा सॉफ्टवेयर टूल्स में जो हम यूज़ करते हैं। तो हम स्टूडेंट की प्रोफाइल की बेस के लिए 7, 8, 9, 10 जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ में वो कन्वीनियंटली अप्लाई कर सकें, वो यूनिवर्सिटीज़ वो प्रोग्राम्स शॉर्टलिस्ट करते हैं और फिर उनमें देखते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, क्या टेस्ट रिक्वायर्ड है। फिर स्टूडेंट को हम बताते हैं कि वो डॉक्यूमेंट
गैदर करना शुरू करें, टेस्ट की प्रिपरेशन शुरू करें, और फिर उसके बाद हम उनको एप्लीकेशन फिलिंग में गाइडेंस देते हैं। जो एसेस लिखने हैं भी हम उसमें भी गाइडेंस देते हैं, ताकि एसओपीज वगैरह जो हैं वो बेहतरीन लिखे जाएं, और रिकमेंडेशन लेटर्स एप्लीकेशन फिल करने में भी गाइडेंस देते हैं। उसके बाद फिर हमारा फेज 2 आ जाता है, जब आपका एडमिशन हो जाता है तो वीज़ा कंसल्टेंसी का। वीज़ा कंसल्टेंसी में भी हम गाइडेंस देते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि वीज़ा के लिए अप्लाई कैसे करना है, वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या प्रिपेयर करने हैं, और इंटरव्यू की प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है कि जब आप वीज़ा इंटरव्यू के लिए जाएं एम्बेसी में, तो क्या आप जवाब देने हैं, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, वो सारी चीज़ें जो है हम उनको गाइड करते हैं। अच्छा, उसके अलावा टेस्ट प्रिपरेशन हम क्या करवाते हैं, हम जीआरई का टेस्ट प्रिपरेशन करवाते हैं। हमारा 6 वीक्स का कोर्स है, वो करवाते हैं। उसके अलावा हम आइल्स की भी प्रिपरेशन करवाते हैं। आइल्स इज़ अ लैंग्वेज टेस्ट एंड जीआरई इज़ एन एप्टीट्यूड टेस्ट। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आइल्स के अलावा डुओलिंगो भी एक्सेप्ट कर लेती हैं। तो वो जब हम शॉर्टलिस्ट करते हैं यूनिवर्सिटीज़, तब देखते हैं कि टेस्ट कौन से रिक्वायर्ड है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो जीआरई के बगैर भी एक्सेप्ट कर लेती हैं, कुछ यूनिवर्सिटी जीआरई लाजमी मांगती हैं। वो सारी चीज़ें फिर हम देख लेते हैं, और हमारी ऑनलाइन ज़ूम पे क्लासेस होती हैं। आप किसी भी शहर में हो, आप हमसे जीआरई भी पढ़ सकते हैं, आइल्स भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। सर एक चीज मुझे मैंने पूछनी है कि जनरली हमारे यहाँ ये कहा जाता है स्टूडेंट्स जो हैं दे लुक आउट फॉर दोज यूनिवर्सिटीज जो आइल्स नहीं मांगती, जीआरई नहीं मांगती। तो जनरली व्हाट यू रिकमेंड, आई मीन टू से, फॉर गेटिंग द विनिंग द स्कॉलरशिप्स, दे शुड गो फॉर सच यूनिवर्सिटीज व्हिच आर नॉट आस्किंग जीआरई, और क्या करना चाहिए इसमें? आपका क्या अच्छा एक्सपीरियंस है? देखिए, एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कंसल्टेंट्स के जो टिपिकल कंसल्टेंट्स हैं, उनके चक्कर में पड़ जाते हैं स्टूडेंट। और वो क्या करते हैं कि वो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के ऑफर लेटर निकलवा देते हैं जिनका कोई रेपुटेशन नहीं है, और वो कहते हैं जी आपको कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, आप बस आप जो है ना, हम आपको ऑफर लेटर निकलवा देते हैं, आप वीज़ा के लिए जाएँ और आप आ जाएँ। अब उसके अंदर प्रॉब्लम क्या होती है, उसमें ये परेशानी होती है कि इतने सारे जो हम देखते हैं ना कि स्टूडेंट्स के वीज़े रिजेक्ट हो जाते हैं, वो इसलिए नहीं होते कि वो बोनाफाइड स्टूडेंट हो, उनके वीज़े रिजेक्ट हो। उसमें बहुत सारे रीज़न्स यही होते हैं कि जब आप यूनिवर्सिटीज़ ही सही, मैंने आपको बताया पहला स्टेप क्या है जो हम फॉलो करते हैं, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज़, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ प्रोग्राम्स। ये वो प्रोग्राम्स हैं जो रेप्यूटेबल प्रोग्राम्स हैं, 4000 तो हैं यूनिवर्सिटीज़ यूएस में, लेकिन वो टिपिकल यूनिवर्सिटीज़ जिनमें कंसल्टेंट भेजते हैं, हमें उनसे भागना है, उनसे हमें दूर रहना है, और हमें जो प्रॉपर अच्छे रीज़नेबल स्कूल्स हैं, उनमें अप्लाई करना है। और वो जो प्रॉपर यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका प्रोसेस भी प्रॉपर होता है। वो आपको कभी भी ऐसे नहीं कहेंगी कि जी आपने लैंग्वेज टेस्ट नहीं देना, आपको हम ऑफर लेटर दे देते हैं। उसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको कोई ना कोई टेस्ट देना पड़ेगा। हो सकता है जीआरई, आजकल कोविड के बाद से कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो जीआरई छोड़ देती हैं, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ अब भी साइंस फील्ड्स में, स्टेम फील्ड्स में जीआरई माँगती हैं। तो इस चीज़ को आप ज़हन में रखना है कि आपने जहाँ जो भी टेस्ट रिक्वायर्ड है, वो टेस्ट से आप डरे ना, आप और मास्टर्स आपकी लेवल। इसमें योर, आई मीन टू से, कंसल्टेंसी विल बी अवेलेबल टू एनीवन, आई मीन हु इज कंफ्यूज्ड अबाउट दीस थिंग्स, तो आप अच्छी यूनिवर्सिटी की तरफ रेफर कर सकते हैं हमारे स्टूडेंट्स को। जी, जी, बिल्कुल। हम तो पूरा शॉर्टलिस्ट करके देते हैं यूनिवर्सिटीज़। अच्छा दिशांत सर, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी, ये फेडरल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। काफी जो इधर स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ओ लेवल नहीं किया हुआ, ए लेवल नहीं किया हुआ, दे आर फ्रॉम द मैट्रिक स्ट्रीम, और जिसको कहते हैं एफएससी या इंटरमीडिएट करके है। तो जनरल परसेप्शन है कि माइट भी जीआरई शायद डिफिकल्ट है, तो इनमें क्योंकि सम मेन इशू जो है इंग्लिश के हवाले से माइट भी जो कंसर्न आता है अक्सर नजर आता है। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है, आप कैसे इनकरेज करेंगे इन स्टूडेंट्स को कि क्या, व्हाट इज द रियलिटी बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस? हाँ जी, क्योंकि मैं आई हैव बीन वर्किंग इन यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशन फाउंडेशन पाकिस्तान, यूएसईएफपी, जो इदारा है जो फुलब्राइट यूएस गवर्नमेंट के अंदर फुलब्राइट स्कॉलरशिप देते हैं। तो हमारा तो ताल्लुक पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से रहा है, और मैं खुद भी क्योंकि आउटरीच फुलब्राइट की करता था। सो आई हैव बीन टू ऑल पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, गिलगित से लेकर बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि फुलब्राइट और इवन जो डायरेक्ट एडमिशन्स के लिए भी बच्चे अप्लाई करते हैं, तो पूरे पाकिस्तान से जाते हैं और जीआरई दे के जाते हैं। और वो मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ओ लेवल या ए लेवल नहीं किया हुआ होता, उन्होंने मैट्रिक इंटर ही किया हुआ होता है। लेकिन फ़र्क है, जो जाते हैं, जो अप्लाई करते हैं, और जो नहीं करते। जो नहीं करते वो डरते हैं, और डरते रह जाते हैं, और अप्लाई नहीं करते। और जो एफर्ट करते हैं, पढ़ते हैं और अप्लाई करते हैं, वो उनमें से स्टूडेंट्स होते हैं जो चले जाते हैं।
तो एक चीज याद रखें कि एक तो मेहनत से ना घबराएं। दूसरा ये है कि जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे, ट्राई नहीं करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका एडमिशन होना था या नहीं होना था। मैं खुद भी यूएस क्वालिफाइड हूँ। सो आई डिड माय मास्टर्स इन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास डार्लिंगटन। मैंने किसी पॉइंट पे अप्लाई किया ही था ना, और मैं भी दूसरे कैंडिडेट्स के साथ कर रहा था। तो अगर मैं अप्लाई ना करता ये सोच के कि मुझे जीआरई देना पड़ेगा या पता नहीं इतने सारे हजारों स्टूडेंट्स अप्लाई करें, मेरा होगा कि नहीं, तो इसलिए उस चीज़ से नहीं घबराना। दूसरा, इससे भी नहीं घबराना कि फंडिंग का क्या होगा। फुलब्राइट स्कॉलरशिप तो अपनी जगह है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि फुलब्राइट में अभी 1 साल पड़ा है, तो आप उससे पहले इस साल आप खुद डायरेक्टली भी अप्लाई करें, ताकि आपको अगले साल तक मार्च अप्रैल तक रिजल्ट पता चल जाए। अगर हो गया और स्कॉलरशिप मिल गई तो वेल एंड गुड, आप चले जाएं। अगर नहीं होता तो आप फुलब्राइट के लिए अप्लाई कर दें। तो अपने लिए हमेशा प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी रेडी रखें। तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास अर्ली सेमेस्टर्स के भी बैठे हुए हैं, तो आप क्या रिकमेंड करते हैं इफ दे आई मीन टू हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर देम आई मीन टू से फॉर देम टू प्रिपेयर फॉर द जीआरई? अगर वो अभी से शुरू करते हैं, आपसे बेसिक ट्रेनिंग ले लेते हैं, तो आप क्या कहते हैं, किस तरह? हाँ जी, जीआरई का ये है कि देखें, मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ टाइम लगता है जीआरई की तैयारी के लिए, लेकिन जनरली आप अपने लिए 2 से 3 महीने रखें। हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है वो 6 वीक्स का है। उसकी रात को क्लासेस होती हैं फ्रॉम 9:30 टू 11। और उसके अंदर ये होता है कि हम बेसिक सारी चीज़ें बता देते हैं कि जीआरई क्या है, उसका फॉर्मेट क्या है। हम एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करवाते हैं। उसके अलावा स्लाइड्स यूज़ करते हैं, हर क्लास के बाद हम स्लाइड्स देते हैं जीआरई की। कुछ ऑनलाइन बुक्स हैं डिजिटल फॉर्मेट में जो हम शेयर करते हैं। और उसके अलावा मैथ की थॉरो प्रैक्टिस करवाते हैं, कुछ वोकैबुलरी बिल्डिंग करवाते हैं, इंग्लिश की थॉरो प्रैक्टिस करवाते हैं, एसेस के ऊपर भी गो थ्रू करते हैं। तो आप वो बिल्कुल अगर 6 हफ्ते का कोर्स करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा भी आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि क्लास बेशक लें, लेकिन 1-2 घंटे रोज आपने खुद भी पढ़ना है, क्योंकि वोकैबुलरी आपको बिल्ड करनी है, मैथ की प्रैक्टिस करनी है। 2 महीने आप लग के एक बार जीआरई के लिए अगर अप्लाई तैयारी कर लें, तो यू कैन डेफिनेटली गेट अ रीजनेबल स्कोर इन जीआरई। ठीक है सर। स्टूडेंट्स, तो हम कैसे मोटिवेट करें, उनको इनकरेज करें कि दिस इज अ राइट ट्रैक, दिस इज अ बेटर ट्रैक? जैसे वैसे भी हम करियर डेवलपमेंट के लिए हम बहुत से एफर्ट्स करते हैं, बहुत से काम करते हैं, जैसे जॉब अप्लाई करना है, तो हायर स्टडीज के लिए जीआरई को अगर हम फॉलो करें तो हमें क्या बेनिफिट या फुल ब्राइट को क्या आसान है इनके लिए, क्या इजीली कर सकते हैं? और जस्ट दे विल, जो परसेप्शन है कि वेस्टेज ऑफ टाइम ही ना हो जाए, फिर टाइम एंड मनी, उस पर थोड़ा सा अगर प्लीज आप ब्रीफ कर दें। हाँ जी, क्योंकि यूएस की ना इट्स द बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन इन द वर्ल्ड। आपको पता ही है कि यूएस सबसे पहले नंबर पे आता है और बाद में फिर दूसरी कंट्रीज आती हैं। तो मास्टर्स पीएचडी लेवल पे मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज जीआरई मांगती हैं यूएस में। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं हो सकती। ये आपके हम जानते हैं ऐसे बच्चों को जो जामशोरो जैसी जगह से या लस बेला जैसी जगह से, गांव से बिलोंग करने वाले बच्चे, जिन्होंने मेहनत की है और जीआरई दिया है, उसमें अच्छे मार्क्स लिए हैं, अच्छा स्कोर किया है। आपने ये जो एग्जांपल दिए हैं, इट मीन के ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कोई इनकी बहुत अच्छी आउट क्लास स्कूलिंग नहीं है, आई मीन टू से आप ये कहना चाह रहे हैं, जो कि रिमोट एरियाज में बिल्कुल रहते ऐसी हैं है। और इनकी कोई स्कूलिंग बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है, लाइक उर्दू मीडियम से भी माइट भी हो, तो वो भी इसमें आप ये कह रहे हैं कि वो भी सक्सेसफुल हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ पे हमारे एक फुल ब्राइट स्कॉलर हैं जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। वो जामशोरो से ताल्लुक़ रखते हैं और वो जामशोरो से गए थे रोबोटिक्स में। उन्होंने जो है वो कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया, एंड ही इज़ वन ऑफ द पायनियर्स इन रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी इन पाकिस्तान। तो वो अब मतलब पढ़ाते हैं। आई थिंक पीएचडी के लिए भी जाने हैं उन्होंने। तो आपका आप उससे जैसे अंदाजा लग। आप भी बिजनेस ग्रेजुएट हैं, तो आप क्या, ये जितने हमारे स्टूडेंट्स आज के सेशन में हैं ये भी बिजनेस स्टूडेंट्स हैं, तो आप इनके लिए क्या रिकमेंड करेंगे? कौन सी, लाइक अभी आगे इनके लिए क्या हम जो किस एरिया के अंदर इनके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं करियर हाँ, और उसके अब देखिए, बाद? एमबीए मैं फॉरेन रेकमेंड इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि एमबीए के लिए ना दो उसमें इश्यूज हैं। एक तो ये है कि 2 से 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता है, और दूसरा ये है कि उसके अंदर फंडिंग बहुत मुश्किल से मिलती है, बिकॉज एमबीए इज अ प्रोफेशनल डिग्री। तो जो लोग बिजनेस फील्ड में वो आगे जाना चाहते हैं, उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि वो एमएस अगर कर लें बिजनेस रिलेटेड फील्ड में, उसके लिए अप्लाई करें। जैसे एमएस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो सकता है,
MS मैनेजमेंट हो सकता है, MS HR हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, MS ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हो सकता है। तो इस तरह की फील्ड में अप्लाई करें और उसमें स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें, डायरेक्ट एडमिशन के लिए अप्लाई करें, तो उसके अच्छे बेहतर चांसेस हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम में भी जा सकते हैं और फिर आगे फर्दर बिल्कुल जा सकते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम के बाद डेटा साइंस को ये ज्वाइन कर सकते हैं PhD। हाँ जी, और इसमें एक मूसा साहब इम्पोर्टेंट चीज है जो कि मैं भूल ना जाऊं, मैं बता दूं, वो ये कि जो स्टेम फील्ड के अंदर जो ग्रेजुएट्स जाते हैं ना, वो यानी कि उसमें अगर कोई भी टेक्नोलॉजी का एस्पेक्ट आ जाता है तो उनको OPT 3 साल का मिल जाता है। अच्छा, OPT क्या होता है? OPT इज ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, यानी कि जब आप अपनी डिग्री खत्म करते हैं तो आप अपने आखिरी साल में अप्लाई करते हैं कि जी मैं यहाँ पे रुकना चाहता हूँ इसी वीजे पे और मैं जॉब ढूंढना चाहता हूँ। तो जनरली जो स्टूडेंट स्टेम रिलेटेड नहीं होते उनको 1 साल का OPT मिलता है। लेकिन अगर आप मैनेजमेंट साइंसेज में ऐसी फील्ड सेलेक्ट कर लें जिसमें कोई ना कोई टेक्नोलॉजी का एस्पेक्ट है, तो आपको 3 साल का OPT मिल सकता है। सो दिस मीन्स कि आपने 2 साल का मास्टर्स किया, उसके बाद 3 साल तक यू कैन स्टे इन US, डू और जॉब, अपना खर्चा उठा सकते हैं और साथ साथ आप अप्लाई कर सकते हैं किसी प्रॉपर जॉब के लिए। और अगर आपको 3 साल एम्पल टाइम होता है, आपको कोई ना कोई इंशाल्लाह जॉब मिल जाएगी जिसमें कि कंपनी आपको H1B वीजा स्पॉन्सर करते, तो फिर आप वहाँ पे परमानेंटली भी रह सकते हैं और फिर उसी की बेस पे लेटर ऑन ग्रीन कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज तो इक्वली ये भी एक इम्पोर्टेंट। एप्लीकेबल फॉर द टीचर्स हु आर टीचिंग। अभी फॉर एग्जांपल हमारे पास जो टीचर्स हैं सर, उनका तो वर्क जी एक्सपीरियंस तो हो गया टीचिंग का, लाइक आपने जैसे कहा था सम डिग्रीज दे रिक्वायर द वर्क एक्सपीरियंस, तो टीचिंग भी एज ए वर्क एक्सपीरियंस तो कंसिडर होता है। बिल्कुल बिल्कुल काउंट होता है, तो टीचर्स के बिल्कुल लिए भी काउंट हमें होता तो है। मोस्ट ऑफ द हमारे काफी टीचर्स हैं जो माइट बी PhD के लिए जाना चाहें और फर्दर हायर स्टडीज के लिए जाना चाहें, तो उनके लिए भी जी जी बिल्कुल, अपॉर्चुनिटीज है। ओके, अच्छा, एक स्टूडेंट बिल्कुल का कर क्वेश्चन सकते हैं। है, मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा आप क्वेश्चन इसी यहीं पे हैंड रेज कीजिएगा, आप करें और मैं आपको दूंगा टाइम। एक स्टूडेंट ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा, उसने कहा सर जर्मनी में वो जाना चाह रहा है हायर स्टडीज के लिए, तो ये GRE और फुल ब्राइट क्या उधर भी कहीं उनको हेल्प आउट करेगा उसको, या आइल्स करना पड़ेगा उसको? अच्छा, जर्मनी के लिए ये है कि देखिए, जर्मनी की एक दो चीजें क्लियर आप रखें कि वहाँ पे फ्री एजुकेशन है पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज में, और लेकिन आपको तकरीबन 1000 यूरो चाहिए वहाँ सरवाइव करने के लिए फॉर एवरी मंथ, क्योंकि आपको अपना खर्चा खुद उठाना है। और उसके लिए वो ब्लॉक अकाउंट होता है तकरीबन 1000 यूरो का, 10,000 यूरो का, जो शुरू में आपने फिल उनको देना होता है। तो 10,000 यूरो आपको एडवांस में देना होता है और फिर वो उसी में से ही आपको 700-800 यूरो हर साल देते हैं, जिससे कि आप सरवाइव कर सकें वहाँ पे। तो एक तो ये चीज़ है जर्मनी की। दूसरा, जर्मनी के लिए एक चीज़ ज़हन में रखें कि लैंग्वेज बैरियर इज़ देयर। आप वहाँ पे जाएंगे, बेशक आप इंग्लिश स्पीकिंग प्रोग्राम में जाएंगे, लेकिन वो आपसे लाजमी जर्मन आपको लैंग्वेज पढ़ाएंगे और वो आपसे कहेंगे कि आप कम से कम उनकी जो कुछ स्टेजेस हैं वो क्लियर करें जर्मन लैंग्वेज की। और वो आप स्टेजेस क्लियर कर भी लेंगे तो उसके बाद जब अगर आपने जर्मनी की जॉब मार्केट में जाना है तो यू शुड नो फ्लुएंट जर्मन। तो मुझे स्टूडेंट्स के अक्सर फ़ोन आते हैं, वो कहते हैं जी हम आ तो गए लेकिन हम फँस गए हैं। अब हम आगे PhD के लिए अमेरिका जाना चाहते हैं या कहीं और जाना चाहते हैं। तो इन चीज़ों को भी ज़हन में रखें कि फ्री एजुकेशन का मतलब नहीं है कि वो वहाँ पे टोटली फ्री होगी। दूसरा, लैंग्वेज बैरियर बहुत बड़ा है। फिर तीसरा ये है कि आपको देख के यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है, क्योंकि सबकी फ्री एजुकेशन नहीं होती, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो लेती हैं फीस। तो उसमें अच्छा, GRE का आपने पूछा था। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने जो GRE नहीं माँगती जर्मनी में, लेकिन कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो GRE माँगती हैं। और लैंग्वेज भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपसे माँगेंगी, लैंग्वेज के टेस्ट आइल्स वगैरह माँगेंगी। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग हैंड रेज करें इसमें इफ यू हैव सम क्वेश्चन टू आस्क, प्लीज रेज योर हैंड और आस्क योर क्वेश्चन प्लीज। जी मिशाल, प्लीज कैरी ऑन, टर्न ऑफ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैं मिशाल कोरजार BBA 6B से बात कर रही हूँ। सर एक्चुअली मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछना था कि ये GRE और AMCAT जो है एस्पायर, ये AMCAT जो है एस्पायर लीडर्स जो लेते हैं, तो सर ये दोनों एक ही टेस्ट है यानी इनमें डिफरेंस है? नहीं, दैट्स अ डिफरेंट टेस्ट, क्योंकि GRE का देखें बड़ा क्लियर है। GRE की वेबसाइट है ETS.org/GRE। आप लिख लें www.ets.org/GRE। ये वो यहाँ पे GRE जनरल एग्जाम है, आपने सब्जेक्ट GRE नहीं देना, और यही वेबसाइट है। और GRE का यही एग्जाम है और किसी वेबसाइट के थ्रू ये नहीं आपको मिलेगा। तो इस वेबसाइट पे जाइए
और वहां जाके आप ये देखें तो दिस इज द GRE जनरल एग्जाम दैट यू नीड टू टेक, और फुल ब्राइट के लिए भी यही GRE चाहिए होता यस तैयब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। है। वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा क्वेश्चन है जीआर स्कोर के बारे में थोड़ा सा बता दो कि मिनिमम कितना स्कोर होना चाहिए सर? अच्छा देखें, GRE में ना कोई पास या फेल नहीं होता। इसके अंदर ये है कि 340 इसके मैक्सिमम मार्क्स हैं, 260 मिनिमम मार्क्स हैं। अब आपने कोशिश ये करनी है कि 300 कोशिश करें, 300 टच करें, और 300 के ऊपर आप जितना ले लेंगे आपको फायदा होगा। तो जब आप तैयारी शुरू करेंगे, शुरू में आप जब हमसे जो स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं, एक हम उनको शुरू में फ्री मॉक टेस्ट कहते हैं देने के लिए, एक एंड में कहते हैं। तो शुरू में जनरली बच्चों के 270 280 आ रहे होते हैं व्हेन दे आर नॉट प्रिपेयर्ड। लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा, 2-2.5 महीने की जब आप तैयारी करेंगे तो उसके बाद यू शुड बी एबल टू हिट द 300 मार्क, अगर आप लग के तैयारी करें तो। ऑलराइट सर। ठीक है ना, तो कोशिश ये करनी है कि 300 या 300 प्लस तक आप हिट करें। थैंक यू। यस प्लीज, मोइन असगर प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन था जो आपने पहले बताया भी कि आपको जो जितने साल का आपकी एजुकेशन होगी अमेरिका में उतने साल के लिए वापस पाकिस्तान आना पड़ेगा। सर इसकी समझ नहीं लगी, ये जरा दोबारा एक्सप्लेन हाँ कर जी, देंगे देखिए, मतलब। ये चीज़ें शायद वापस नहीं आना चाह रहे होंगे ना। नहीं, ये बिल्कुल रह भी सकते हैं, रहना चाहें, लेकिन फुल ब्राइट के थ्रू नहीं। अगर आप फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पे अप्लाई करेंगे तो उसमें ये शर्त है कि अगर आप 2 साल के मास्टर्स के लिए जाते हैं तो आपको वो खत्म करने के फौरन बाद पाकिस्तान वापस आने हैं और 2 साल पाकिस्तान में स्पेंड करने हैं। आपकी मर्जी, आप पाकिस्तान में जो मर्जी करें, लेकिन 2 साल आपको पाकिस्तान में स्पेंड करने होंगे। अगर आप 5 साल की PhD के लिए जा रहे हैं तो फिर आपको 5 साल के लिए वापस आना पड़ेगा। ये फुल ब्राइट स्कॉलरशिप की शर्त है। लेकिन अगर आपने डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, यानी कि जैसे आपने खुद से की है या हमारे थ्रू आपने शॉर्ट लिस्टिंग की है और आपने किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया और आपका एडमिशन हो गया, तो फिर ये शर्त नहीं है। फिर आप वहाँ पे डायरेक्ट गए हैं, आपने वहाँ पे अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, फिर आप वहाँ पे OPT के लिए अप्लाई करते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया था, ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, और फिर आप वहाँ पे रह के जॉब ढूंढ सकते हैं। तो फुल ब्राइट में नहीं कर सकते, यू हैव टू कम बैक टेम्परेली। और अगर डायरेक्ट एडमिशन आप लेते हैं तो फिर ये शर्त नहीं है, फिर आप वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। ओके सर। सर एक और चीज पूछनी थी मैंने कि सर इसके लिए 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन कंपलसरी है कि हम A लेवल के बाद भी हम ये GRE दे सकते हैं? नहीं, GRE तो देखिए, आप 18 साल से ऊपर उम्र है तो कभी भी दे सकते हैं, लेकिन इसका फायदा कब है? ये दिया जाता है फॉर एडमिशन इन मास्टर्स और PhD। तो जब आप अपने बैचलर्स के फाइनल ईयर में, तो दैट्स द बेस्ट टाइम टू टेक, मास्टर्स के फाइनल ईयर में या बैचलर के फाइनल ईयर में, दैट्स द बेस्ट टाइम टू टेक द टेस्ट। ओके सर, मतलब हम 4 ईयर ऑफ ग्रेजुएशन नहीं कर सकते वहाँ पे, जस्ट मास्टर और PhD कर सकते हैं? नहीं, 4 इयर्स बैचलर के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए SAT का एग्जाम चाहिए होता है। जो GRE है ये मास्टर्स और PhD के लिए चाहिए। ओके सर। ये माइट भी ये पूछना चाह रहे हैं कि ये अगर अभी से अप्लाई करना चाहें लाइक ड्यूरिंग देयर स्टडीज, तो यहाँ पे इन प्लेस ऑफ गोइंग फॉर द GRE दे शुड अप्लाई फॉर द GMAT और द SAT। आई थिंक इसके ऊपर आना चाहिए अगर वो इंटरमीडिएट की हाँ, base अभी पे। आप किस क्लास में मोइन? सर मैं BBA 4th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ अभी। अभी इनके साथ हाँ, तो तकरीबन आप 3 सेमेस्टर्स रहते हैं इनके फाइनल। हाँ, आप GRE दे सकते हैं, बिल्कुल। आप अभी GRE की तैयारी करके GRE दे सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Yes, Mishal, you please carry on. सॉरी सर फॉर क्वेश्चन अगेन। एक्चुअली सर मेरा वही क्वेश्चन है, मुझे थोड़ा सा उसकी कंफर्मेशन चाहिए सर। एक्चुअली मैं जिस टेस्ट की बात कर रही हूँ ये एस्पायरिंग माइंड्स कंप्यूटर एडेप्टिव टेस्ट है, और ये जो एस्पायर लीडर्स प्रोग्राम है फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी उनकी तरफ से सर ये लिया जाता है, और ये मैं दे चुकी हूँ। तो आपने सर जो फॉर्मेट बताई है बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरीके से कंप्यूटराइज्ड टेस्ट था, जो आपने फॉर्मेट बताया एग्जैक्टली ये फॉर्मेट था। और तो मतलब एनालिटिकल थे, फिर उसके बाद ये हमारे कॉम्प्रिहेंसिव हमने 2 एसेज लिखे। तो मैं आपसे सर ये पूछना चाह रही हूँ, मतलब ये टेस्ट उसी टाइप का होगा या ये जो डिग्री आप कह रही है टोटल डिफरेंट चीज है? नहीं, ये वही है। इसमें मैथ, मल्टीपल चॉइस, Yes, इंग्लिश, sir. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकैबुलरी रिलेटेड क्वेश्चंस, एंड देन 2 एसेज जो आपको टाइप करने होते हैं। ये यही फॉर्मेट है इसका। और इसके अलावा जी,
यस सर, तो इसी फॉर्मेट का सर ये टेस्ट मैं दे चुकी हूँ। तो आपसे मैं ये पूछना चाह रही थी कि क्या ग्री जो है वो ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यानी इसके लिए मुझे जीआरई ही देना पड़ेगा? हाँ, जो फुल ब्राइट है ना, उसके लिए आपको जीआरई ही देना पड़ेगा और कोई टेस्ट एक्सेप्टेबल नहीं है। और उसके अलावा जब भी आप डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हो ना किसी यूनिवर्सिटी में, तो उनके प्रोग्राम्स के पेज पे जाके देख लिया करें कि कौन से टेस्ट एक्सेप्टेबल हैं उनको। तो उसके अंदर अगर जीआरई के अलावा कोई और टेस्ट लिखा है तो फिर फाइन, लेकिन अगर सिर्फ जीआरई ही लिखा है तो फिर आपको जीआरई ही देना होगा। लेकिन फुल ब्राइट के लिए कोई और टेस्ट एक्सेप्टेबल नहीं है, सिर्फ जीआरई है, जीआरई और टोफल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। अच्छा निशांत साहब, इसमें एक चीज बताएं, ये मेल फीमेल रेशो के वाले से मैं पूछना चाह रहा हूँ, कौन मतलब लड़कियां कितने इसमें मतलब से सक्सेसफुल हैं जो अप्लाई करती हैं, और उनको माइट भी कि वो फील करती हो कि घर से परमिशन के वाले से या उधर के अमेंटो से व्हाट दे विल डू आफ्टर गेटिंग द स्कॉलरशिप, तो उस वाले से क्या आपके पास? अच्छा, ये लड़के अक्सर डिस्करेज हो जाते हैं सुनकर, लेकिन ये है कि लड़कियां जो हैं उन्हें इनकरेज किया जाता है फुलब्राइट में भी अप्लाई करने के लिए, और जनरली यूएस यूनिवर्सिटीज में भी अप्लाई करने के लिए। फुलब्राइट में रेशो लड़कियों का थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है लड़कों से, तो जनरली या तो 50-50% होते हैं या 51% तकरीबन लड़कियां होती हैं। तो फुलब्राइट में भी लड़कियों को इनकरेज किया जाता है, और जब व्हेन गर्ल्स अप्लाई डायरेक्टली टू यूनिवर्सिटीज तब भी उनको प्रेफरेंस दिया जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बॉयज आर नॉट इनकरेज टू अप्लाई। देयर आर मोर पाकिस्तानी बॉयज देन गर्ल्स इन द यूएस। तो इसलिए ये है कि गर्ल्स को, लेकिन आजकल ज़रा चेंज हो गया है सिलसिला, पेरेंट्स भी अब ओपन हैं गर्ल्स को भेजने के लिए, सो दैट्स अ पॉजिटिव चेंज। तो इसलिए ज़रूर इन्हें अप्लाई करना चाहिए और ट्राई करना चाहिए। ओके, अनदर थिंग, जो स्टूडेंट्स हैं जो फर्दर निशांत साहब के साथ रब्ता करना चाहते हैं फॉर द ट्रेनिंग, तो एक लिंक मैं इनके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अभी जो ग्रुप मैंने व्हाट्सएप पे बनाया है इन पार्टिसिपेंट्स का, और इसके अलावा कोई और अपडेट होगी वहीं पे मैं इसको शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप डायरेक्ट निशांत साहब से कम्युनिकेट कर सकते हैं पहले, क्योंकि बेसिक इन्फॉर्मेशन उसमें कलेक्ट होगी तो इन तक पहुँच जाएगी वो, उसकी बेस के ऊपर आप इजीली, क्योंकि उसको कैंडिडेट के बारे में पहले से पता लगेगा। यस अब्दुल रहमान, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। सर मेरा ये जिशान सर से ये क्वेश्चन था कि जो बच्चे जीआरई करके जाते हैं उधर फुल ब्राइट में, तो उनका उधर मार्क्स का क्या क्राइटेरिया होता है? जैसे इधर अगर पाकिस्तान में अगर अगर कोई स्कॉलरशिप किसी भी बच्चे को मिलती है, अगर उसके 2-3 सेमेस्टर बाद नंबर कम हो जाते हैं किसी वजह से, तो वो उसको स्कॉलरशिप का क्या क्राइटेरिया है, उसको मिलती रहेगी या वो ड्रॉप हो जाएगा इस तरह? ये थोड़ा सा मेरे लिए कंफ्यूजिंग हो गया क्वेश्चन, ये कौन से स्कॉलरशिप की बड़ा बात कर रहे हैं? सर ये जीआरई जो जीआरई के बाद जो स्कॉलरशिप फुल अच्छा, जो आप कह रहे हैं कि उधर अमेरिका में स्टडीज के दौरान अगर आपके मार्क्स कम है, मेरा ख्याल उसका जी निशान साहब आप सर प्लीज इसका आंसर। जी, उसमें ये है कि एक मिनिमम सीजीपीए तो आपको मेंटेन करना होता है, तो ये तो नहीं हो सकता कि आप मतलब जाएं और आप एक इतनी बड़ी स्कॉलरशिप पे गए हैं और फिर आप बिल्कुल ही 2 पे अपना सीजीपीए ड्रॉप कर लें। तो वहाँ पे क्राइटेरिया तो वही है जो बाकी स्टूडेंट्स के लिए है। सो यू नीड टू मेक श्योर कि जब आप वहाँ पे जाएं तो आप सिर्फ ठंडे ना हो जाएं ये देख के कि मुझे फुल ब्राइट मिल गया है। उसके बाद भी आप अपनी मेहनत जारी रखें एंड मेंटेन अ गुड सीजीपीए, ताकि आगे आपको जॉब के लिए भी तो अप्लाई करना है। तो आपकी अच्छे ग्रेड्स होंगे तो आपको अच्छी जॉब मिलेगी। अच्छा सर, सक्सेस रेट क्या है स्टूडेंट्स का हमारे जो अपीयर होते हैं इसमें जनरली, अगर हम ऑल ओवर द पाकिस्तान से जो स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, तो जी, फुल ब्राइट का पाकिस्तानियों तकरीबन 10% सक्सेस रेट है। फुल ब्राइट का, और जी, जी, डायरेक्ट जो लेकिन डायरेक्ट अगर हाँ, अप्लाई कर, डायरेक्ट एडमिशंस में तो बहुत ऑप्शंस हैं, क्योंकि देखिए ना, आप 6-7-8 यूनिवर्सिटीज़ में कम से कम हम अप्लाई करवाते हैं, तो उसके अंदर तो चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं एडमिशन के, उसमें ऐसा कोई इश्यू नहीं है। बस उसके अंदर चैलेंज ये होता है कि फिर फंडिंग भी ढूँढनी है, स्कॉलरशिप्स वगैरह भी ढूँढनी है स्टूडेंट्स के लिए। तो इसलिए देयर इज़ समथिंग फॉर एवरीवन देयर, ऑल यू नीड टू डू इज़ टू प्रिपेयर एंड वर्क हार्ड एंड हैव अ प्लान। I mean, this is also a skill जो डेफिनेटली आपकी स्पोर्ट्स से इनको स्टूडेंट्स के अंदर आ सकती है, वो यही है कि दे शुड अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप्स, दे शुड ट्राई फॉर दीज अपॉर्चुनिटीज, जो कि बहुत ज़्यादा है की तादाद में हर यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप्स होते हैं। देखें, वो कहते हैं ना कि आइदर यू सक्सीड और यू लर्न, तो इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। उसके अंदर आपने इंटरव्यू देना है, इंटरव्यू जब भी देना है दैट्स अ लर्निंग प्रोसेस। आप लोग जब जॉब के लिए भी जाते हैं तो 10 इंटरव्यू देते हैं, एक जगह आपका एडमिट वो होती है आपकी जॉब,
तो बाकी जो है वो फेलियर नहीं होता। दैट्स लर्निंग प्रोसेस, क्योंकि आप उन इंटरव्यूज से अपनी गलतियों से सीख के ही आगे एक इंटरव्यू में सक्सेस पाते हैं। इसी तरह से आप जब यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे होते हैं तो वो भी आपके लिए एक लर्निंग प्रोसेस है। आपका 8 में से एक यूनिवर्सिटी में 2 यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, लेकिन जब आप इस प्रोसेस से गुजरते हैं तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि चाहे वो जीआरई प्रिपरेशन का हो या अप्लाई करने का हो इन इटसेल्फ, उससे आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं हर स्टेप के ऊपर, जो कि आगे आपको जिंदगी में काम आएगा। बिल्कुल ठीक है ज़ीशान साहब, सर थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग योर टाइम। तो तमाम स्टूडेंट्स ने, हम लोगों ने, हमारे डेफिनेटली कुछ फैकल्टी मेंबर्स भी थे इस सेशन में, सब ने बहुत कुछ लर्न किया होगा। सो होपफुली सर Thank you so इंशाल्लाह much. आपसे इंटरेक्शन रहेगी। सर थैंक यू थैंक यू सो मच सर।